Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our online lecture series on electrical machines. This is Muhammad Uwais, your course instructor. So last week we completed the topic of synchronous generators. That topic was covered in detail. So we spent around 3 to 4 weeks on the topic of synchronous generators, and if you include the fundamentals as well, then it was like 4 weeks. So I hope that topic is clear to you. Now is the time to start our discussion on synchronous motors. Synchronous motors are essentially machines, AC machines, that are used to convert electrical power to mechanical power. And in this lecture, in this week, we are going to deal with synchronous motors. Essentially, synchronous motor is the same physical machine as the synchronous generator. And all of the basic relations like the speed, power, and torque equations, which we discussed previously, will also be applicable to synchronous motors. So let's discuss some of the topics, revise some basic concepts, and get into some more details. So first of all, we need to revise the basic principle of motor operation. For that, consider the two-pole synchronous motor which has been shown here. So what happens that initially we have some field current in the motor that produces the magnetic field BR. ठीक है, this is the steady state magnetic field BR. ये students हमने काफी डिटेल में पीछे डिस्कस कर चुके हैं. Now, since the this machine is now being used as a motor, a three-phase set of voltages is applied to the stator of the machine. ठीक है, और जब आपने थ्री फेस वोल्टेज अप्लाई किया है, अब क्या होगा, आपके पास थ्री फेस करंट फ्लो करेगा आर्मेचर वाइंडिंग में. And this three-phase current flow in the armature winding, this produces a uniform rotating magnetic field. Okay. The important point here is that the magnetic field is rotating. Okay, now what happens? This is the working principle. How the torque is produced? We have two magnetic fields. One is a rotating magnetic field, while the other one is not. So BR क्या होता है, क्या है कि BR, this which is the rotor field, it will tend to line up with the stator field. ठीक है, ये इसको कैच करने की कोशिश करेगा, and this will result in production of torque. And the rotor field will never be able to actually catch the stator's magnetic field, and this is actually the working principle of the synchronous motor. And that torque is actually given by the cross product of BR and BS. ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था जब हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे. Now in this figure, if you see, this is your BR and this is your BS. So if you apply the right hand rule, so you will see that the direction will be counterclockwise. ठीक है, जो आपको यहाँ नजर आ रही है. So हमें BR to BS मूव करना पड़ रहा है. So it is counterclockwise. And then the principle is actually stated here, जो मैं already आपको बता चुका हूँ. The rotor, it chases the rotating stator magnetic field around in a circle while never catching up with it. ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास essentially एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है. So I hope this is now clear. हमने इसको दोबारा रिवाइज कर लिया है. जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपसे जिक्र किया कि सिंक्रोनस मोटर इज एसेंशियली द सेम मशीन एज द सिंक्रोनस जनरेटर. तो जो आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट है वो भी एसेंशियली आपके पास बिल्कुल सेम है. ठीक है, एक्सेप्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो इज रिवर्स्ड. आप देख सकते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है आपके पास वो अपोजिट हो गई है. ठीक है, सो अब इसमें क्या हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द स्टेटर ऑफ द मोटर इट इज रिवर्स्ड. पहले आपके पास क्या हो रहा था, आई ए की डायरेक्शन अदरवाइज थी. अब यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, स्टेटर के ऊपर थ्री फेज वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद आपके पास करंट फ्लो करना शुरू कर देगा. ठीक है, और इसकी वजह से आपके पास एसेंशियली एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा. एक थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, और एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यहाँ रोटर में, एंड देन बिकॉज ऑफ दीज टू मैग्नेटिक फील्ड आपके पास टॉर्क प्रोडक्शन होगी. नाउ हैव अ लुक एट दिस इक्वेशन, दिस इज आल्सो चेंज्ड. अब अगर आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो केवीएल आपको किस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिस केवीएल हैज टू बी अप्लाइड लाइक दिस. ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ केवीएल. सो इट विल बी V5. ठीक है, V5 इज इक्वल टू EA which is this, and then the other two drops. ठीक है, so it will be EA plus J XS IA plus RA IA. What is X of S? X of S is actually the sum of two reactances. It includes armature reactance and also the self reactance. ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं. और अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर EA एज वेल. सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम, देयरफॉर मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा जल्दी से कवर कर रहा हूँ.
एंड नाउ दिस इज द पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट। एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे हमारे पास मोटर में था यहाँ पे, जैसे जनरेटर में था, बिल्कुल उसी तरीके से, विद द ओनली डिफरेंस बीइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट इज इन दिस डायरेक्शन। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द फेजर डायग्राम फॉर अ जनरेटर। ठीक है, दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ अ जनरेटर जो आपको यहाँ दिखाई दी। ठीक है, साथ साथ आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम भी आपको यहाँ गिवन है। सो यही हमने देखा था जब हमने सिंक्रोनस जनरेटर को देखा था, विच वाज ऑपरेटिंग फॉर इंस्टेंस एट अ लैगिंग लोड। ठीक है, तो ये आपके पास लोड है, तो ये आपके पास फेजर डायग्राम बनी थी। यहाँ पे हमने जो आर्मेचर रेजिस्टेंस का जो ड्रॉप था उसको हमने निगलेक्ट किया उस इफेक्ट को। ठीक है, तो दिस इज अ सिंप्लीफाइड फेजर डायग्राम। यहाँ पे आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि हेयर द बी आर विच इज द रोटर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एक्चुअली हेड ऑफ बी नेट। तो इससे क्या होता है हमारे पास एसेंशियली, और ये चीज आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है कि ई ए इज लाइंग हेड ऑफ वी फाइव, दिस इज योर वी फाइव एंड दिस इज योर ई ए। तो आप देख सकते हैं ई ए लाई कर हेड ऑफ वी फाइव। वी फाइव इज योर टर्मिनल वोल्टेज जो आपको मिल रहा होगा अगर आप पर फेज डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है, एंड सेम इज द केस फॉर बी आर। So this is your net magnetic field, this is your rotor magnetic field. So what are the consequences? The consequences are that in the generator action, the induced torque is opposite to the direction of rotation. ये आपको direction of rotation given है, नजर आ रही है आपको, ये है आपकी direction of rotation। This is your direction of rotation, this which is counterclockwise. Now, why do we say that induced torque is opposite to the direction of rotation? And what how can we prove that? उसके लिए we need to use this relationship of torque। ठीक है, पीछे हमने in terms of rotor magnetic field and stator magnetic field देखा था। We also know that this is also a valid relationship. So the vector product between BR and B net. So if you look in the figure, you have your BR, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर है, this is your BR, एंड देन यू हैव योर बी नेट। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे एक डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ। अब क्या है कि मुझे राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, वेक्टर प्रोडक्ट निकालनी है। सो व्हेन यू डू सो, दिस इज हाउ इट विल लुक। ठीक है, अब जो डायरेक्शन आपके पास आने वाली है दैट विल बी एक्चुअली क्लॉकवाइज। सो दिस मीन्स दैट इन जनरेटर द इंड्यूस्ड टॉर्क इज एक्चुअली अपोजिट टू द स्पीड ऑफ रोटेशन। और ये चीज मैंने आपको पहले जनरेटर इफेक्ट में पढ़ाई थी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल ड्रैग। But what happens in a synchronous motor? Let's have a look. So in a motor, this is opposite. So V5 is what happens that EA is actually now lying behind V5. यहाँ पे आप देख सकते हैं EA lie करे behind V5. Similarly, BR is also lying behind B net. क्यों ऐसा हो रहा है? और क्योंकि आपको यहाँ पे the direction of IA that is also reversed in the equivalent circuit. ठीक है, so now if you apply, if you try to find out the torque, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? torque will be from BR to B net। ठीक है, so अब मैं अगर अप्लाई करूंगा तो this will be the direction of torque, whereas the direction of rotation is already counterclockwise and the direction of the induced torque is also clockwise. So what happens that they will support each other. Therefore, in motor, we say that the induced torque is in the direction of rotation. So this is the difference between the generator and motor. I hope this is now clear to you. Now let's discuss the steady state synchronous motor operation. उसके लिए हमें दो कंसेप्ट को डिस्कस करना जरूरी है, जिनमें से पहला कंसेप्ट हमारे पास है टॉर्क स्पीड रिलेशनशिप। एंड ये रिलेशनशिप हमें कैसे पता चलेगा? बाय द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। Okay, now to have a better understanding of that curve, of this curve, we need to know that basically the synchronous machines or synchronous motors are, they're used to supply power to the loads that are basically constant speed devices. तो जहाँ पे आपके पास वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन चाहिए होता है, जनरली वहाँ पे आपके पास सिंक्रोनस मोटर्स यूज नहीं हो रही होती। और ये जिन पावर सिस्टम के साथ कनेक्ट होने जा रही होती हैं, दोज सिस्टम आर वेरी लार्ज देन द इंडिविजुअल मोटर। सो एसेंशियली आपके पास पावर सिस्टम इट अपीयर्स एज एन इनफाइनाइट बस टू द मोटर। ठीक है, इनफाइनाइट बस वाला कंसेप्ट हमने पिछले वीक लेक्चर्स में देखा था, जब हमने देखा था कि पैरेलल ऑपरेशन हमें करना था जनरेटर का विद एन इनफाइनाइट बस और विद अ लार्ज पावर सिस्टम। तो वहां पे हमने देखा था कि द टर्मिनल वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी दे रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यू कैन नॉट चेंज द टर्मिनल वोल्टेज एंड द सिस्टम फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, चाहे आपको कितनी पावर क्यों ना ड्रॉ करनी पड़े फ्रॉम द मोटर. This means now since the frequency is constant and we know that there is a relationship between system's frequency and the speed. ठीक है, एक रिलेशनशिप है हमारे पास सिंक्रोनस मशीन्स के अंदर एंड दे आर लॉक्ड विद ईच अदर एसेंशियली. ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास कांस्टेंट है तो आपके पास जो स्पीड होने वाली है वो भी कांस्टेंट होने वाली है. ठीक है, सो द स्पीड विल बी कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द लोड. दिस हैज बीन शोन इन दिस कर्व. हैव अ लुक. यहाँ देखिए दिस इज द सिंक्रोनस स्पीड. ठीक है, जिसका रिलेशनशिप हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, सो हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं एंड दैट विल बी कांस्टेंट फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी. यस, इट कैन बी चेंज इफ द नंबर ऑफ पोल्स आर चेंज, बट एक मोटर जब एक दफा मैन्युफैक्चर हो चुकी है तो उसके नंबर ऑफ पोल्स आर नाउ कांस्टेंट. ठीक है, देयरफॉर इफ द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट द स्पीड हैज टू बी कांस्टेंट. अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ये जो आपके पास y एक्सिस पे टॉर्क है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर लोड. ठीक है, तो ये इसका रेटेड टॉर्क है. ठीक है, अगर आप रेटेड टॉर्क से कम है, लोड कम है, तो आप यहाँ पर है. आपका जो लोड है वो रेटेड से बढ़ सकता है. सो इवन इफ इट इज इंक्रीजिंग, इवन इफ योर लोड इज इंक्रीजिंग, व्हाट हैपेंस इज द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. तो जब स्पीड कांस्टेंट है तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिलेशनशिप आता है वो क्या आता है, इट इज जीरो. स्पीड रेगुलेशन इज जीरो. ठीक है, सो नो लोड माइनस फुल लोड इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं होने जा रहा. So then what happens? This torque is given by this relationship, we know. ठीक है, so BR B net sin delta, where delta is the torque angle. ठीक है, ओके, और आप चाहें तो इसको इस रिलेशनशिप से भी टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम कब आपको मिलने वाला है. ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क इज ऑब्टेन्ड व्हेन दिस डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो अगर आप मैक्सिमम टॉर्क की बात करते हैं जिसे हम पुल आउट टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है, दिस इज गिवन बाय दिस वेरी रिलेशनशिप. ठीक है, सो नाउ यू शुड नो कि व्हाट इज द पुल आउट टॉर्क. दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ मोटर. ठीक है, दिस हैपेंस व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री. और रिमेंबर, जो आपके पास जो फुल लोड टॉर्क्स होते हैं वो इससे अच्छे खासे कम नहीं होते हैं. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका लोड इफ इट एक्सीड्स, इफ योर लोड एक्सीड्स द पुल आउट टॉर्क, तो देन इस केस के अंदर यू आर इन ट्रबल. ठीक है, इसका मतलब ये कि अब आपके पास मशीन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी. बेसिकली आपके पास मशीन में सीवियर वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएंगी इफ द लोड exceeds the pull out torque. So from the previous slide, now we know that a synchronous motor, it will be operating at the same speed even if the load is exceeding. ठीक है, provided the load is within, or the load torque is within the pull out torque, the motor will ensure its operation and will provide you a constant speed operation. ठीक है, the motor, it will develop enough torque to keep the motor and its load turning at the synchronous speed. But what happens if now the load is changed on a synchronous motor? ठीक है, यानी अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम लोड को चेंज करने जा रहे हैं. तो उसको उस इफेक्ट को देखने से पहले हम यहाँ देखते हैं कि सिंक्रोनस मोटर को जो ऑपरेट करी है एट लीडिंग पावर फैक्टर. ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट आपके पास, करंट डायरेक्शन से आपको पता चल रहा है कि इट इज एक्चुअली द केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर. सो दिस इज योर फेजर डायग्राम, दिस इज योर V5 एंड दिस इज योर EA. और द एंगल बिटवीन V5 एंड EA इज योर डेल्टा. ये डेल्टा कौन सा एंगल है, बेसिकली दिस इज माय टॉर्क एंगल. अब हमें ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होने जा रहा है. Okay, now let's see what happens if the load on the machine is changed. Specifically, let us increase the load on the shaft of the machine. ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, the machine will slow down. और अच्छा, जब मशीन स्लो डाउन हो जाएगी तो आपके पास क्या होने वाला है कि बेसिकली आपके पास रोटर विल स्लो डाउन. सो फॉर दैट लेट्स हैव अ लुक एट दिस मैग्नेटिक डायग्राम एज वेल. सो दिस इज योर बी नेट एंड दिस इज योर बी आर. ठीक है, इनिशियली आपके पास यहाँ पर है. Correspondingly, this is your phasor diagram. So this is your V5 and this is your EA. Now, since the rotor has slowed down, तो आपके पास this BR, what will happen? That this BR will fall behind B net further. ठीक है, तो अब जो आपके पास जो ये बनेगी वो कुछ यहाँ पे आ रही है रफली. ठीक है, मैं एक रफ बना रहा हूँ. अब क्या हुआ आपके पास, जो आपके पास इसका मतलब ये कि जो एंगल बनेगा अब वो आपके पास एक डिफरेंट एंगल बन रहा होगा, यानी टॉर्क एंगल. So if I call this as delta 1 for instance, then you can see that this delta 1 is greater than my delta.
कॉरेस्पॉन्डिंगली जो आपके पास चेंज आना है वो यहाँ पर भी आना है, ठीक है, ईए में. सो अगेन यू सी दैट योर लोड एंगल हैज इंक्रीज्ड, ठीक है. एंड व्हेन योर लोड एंगल इंक्रीजेस, what happens, the induced torque it increases given by this relationship, ठीक है. तो हमने यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज की है, डेल्टा इंक्रीज्ड एंड देन टॉर्क इंड्यूस्ड हैज इंक्रीज्ड. सो इनिशियली our omega was less than synchronous speed. Okay, when that happened, हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास टॉर्क एंगल बना वो it was greater than the actual torque angle, and because of this the induced torque it increased, ठीक है. टॉर्क इंड्यूस हमारे पास इंक्रीज हो गया और this has now increased, and consequently हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास ओमेगा है अब वो कहाँ पे पहुंच गया है, it is now again back on omega synchronous. So we have again achieved synchronous speed. अब इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास टॉर्क है, दिस टॉर्क, इसको अगर मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखा सकूं, दिस टॉर्क इज नाउ इक्विवेलेंट टू योर लोड टॉर्क, ठीक है. तो अब जो आपके पास है इंड्यूस्ड टॉर्क एंड द लोड टॉर्क दे आर सेम, ठीक है. एंड द मशीन इज अगेन नाउ रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है. ये चीज आपको यहाँ पे मैंने लिख के बता दी है. सो मशीन आपके पास दोबारा सिंक्रोनस स्पीड पे आ चुकी है, बट रिमेंबर एट अ डिफरेंट टॉर्क एंगल. Okay, now let's discuss this effect on the phasor diagram. Phasor diagram में हमारे पास तीन कंपोनेंट है essentially. One is this V5 component, ठीक है. The other is EA1 जो आपको यहाँ पे एक लाइन से नजर आ रहा है, and then this component जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. This is for a given current IA1 for instance, ठीक है. Assume we are operating at this point initially IA1, ठीक है. So हमारे पास लीडिंग बिहेवियर है initially. ये जो हमारे पास कंपोनेंट है जो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, this is our, कौन सा ड्रॉप है स्टूडेंट्स, दिस इज जे एक्सएस आई ए ड्रॉप, ठीक है. ओके, इस वक्त हमें क्या हो रहा है, दिस इज फॉर अ गिवन लोड, और ये दिस लोड इज डिफाइंड बाय द लोड दैट इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट, ठीक है. लोड जो हमने कनेक्ट की है मोटर के साथ. अब इनिशियली हमारे पास जो लोड की तरफ से पावर डिमांडेड है दैट इज P1, ठीक है. एंड व्हाट इज गोना हैपन कि एज द लोड चेंजेस दिस पावर डिमांड विल इंक्रीज, सो दिस विल बी P2 P3 एंड P4. अब इस फेजर डायग्राम को जो आपको यहाँ पे दिखाई गई है, इसको समझने के लिए कुछ कंसेप्ट को देखना जरूरी है. सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर the internal generated voltage EA has to remain constant. Why? Because this EA is dependent on this equation K phi omega, यानी कि phi और omega के ऊपर dependent है. K is my machine constant, remember. So now omega हमारे पास constrained है because of the system of the input power supply. This omega is fixed and the phi is also fixed because we have not changed the field current. So ये दो हमारे पास constraints हैं, due to which our field current, our internal generated voltage is कांस्टेंट. ये आपको दिखाया हुआ है बाय दिस आर, ठीक है. ये जो आपको लोकस दिखाया है, सो दिस लोकस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट EA इज कांस्टेंट, ठीक है. ये अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं यहाँ पे क्या है, दिस इज कांस्टेंट बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग एनी ऑफ द पैरामीटर, ठीक है. मैं इसको रब कर देता हूं यहाँ पे. अब क्या होने जा रहा है मेरे पास, अब चूंकि लोड मेरे पास चेंज हो रहा है, ठीक है, लोड की तरफ से डिमांड बढ़ रही है P की. तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस इक्वेशन ऑफ P. दिस इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप. अब इसमें क्या है, हैव अ लुक, वी हैव सम कंस्ट्रेंट्स. दिस V5 इज कांस्टेंट, ठीक है. V5 इज कांस्टेंट, ठीक है. टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास ये भी कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ द सिस्टम. दिस इज कांस्टेंट, वी कैन नॉट चेंज दैट. X of S is also constant, synchronous, ठीक है, रिएक्टेंस. सो क्या चीज रह जाती है मेरे पास, इफ इन ऑर्डर टू इंक्रीज P इट इज ओनली दिस टर्म ऑफ EA sin डेल्टा. और ये मेरे पास कौन सा कंपोनेंट है, दिस इज माय वर्टिकल कंपोनेंट जो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है. सो यू सी दिस इज P1, दिस इज P2 P3 P4 एंड they all are representing actually EA sin डेल्टा, ठीक है. सो EA1 sin डेल्टा, EA2 sin डेल्टा 2, EA3 sin डेल्टा 3 एटसेट्रा. सिमिलरली आपके पास अगर इस रिलेशनशिप में इस रिलेशन को आप प्लेस कर देते हैं जो हम पहले देख चुके हैं, so you will see that this component IA cos theta has also needs to be increased. What is this theta? This is actually angle between IA and your terminal voltage V5.
ठीक है, जो कि डिटरमाइन करेगा पावर फैक्टर को। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास जो आपको कंपोनेंट नजर आ रहे हैं आई ए कॉस थीटा वाले, वो कौन से कंपोनेंट है स्टूडेंट्स? फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास दिस कंपोनेंट इज फॉर आई ए वन, ठीक है, मैं इसको हाईलाइटर से आपको दिखा देता हूँ, दिस इज फॉर आई ए वन। और अगर हम आई ए टू की या आई ए थ्री की लिए बात करें फॉर इंस्टेंस, तो ये कंपोनेंट मेरे पास क्या होने जा रहा है, दिस इज दैट दिस कंपोनेंट फॉर आई ए थ्री। सो यू सी दिस इज इंक्रीजिंग। और अगर आप आई ए फोर के लिए बात करते हैं तो ये कंपोनेंट मेरे पास क्या हो जाता है, मजीद ये और इंक्रीज हो जाता है। So this component also increases, but overall the magnitude of EA is remaining constant. So as we are increasing the load, the vector of EA is actually swinging down in the manner. ठीक है, पहले आपके पास यहाँ EA1 है देखिए, फिर उसके बाद आप EA2 पे आ गए and then EA3. Remember the vector is swinging down, but the magnitude of EA is constant. ठीक है, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट है, एक रियल पार्ट है, एक आपके पास x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है। सो आपके पास ओवरऑल द मैग्नीट्यूड ऑफ EA इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रेंट है हमारे पास, k फाई ओमेगा में फाई चेंज नहीं हो रहा, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा, सो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ EA हैज टू रिमेन कांस्टेंट। और कांस्टेंट रहने के लिए होता है कि आपके पास EA साइन डेल्टा इंक्रीजेस, ठीक है। और जैसे जैसे आप इसको मजीद बढ़ाते जा रहे हैं तो आपके पास हो क्या आ रहा है कि जो आपके पास कंपोनेंट है x ऑफ एस आई ए, दिस एक्चुअली इंक्रीजेस, ठीक है, दिस हैज टू इंक्रीज। पहला जो आपके पास कंपोनेंट है वो ये रहा, जो आप यहाँ देख सकते हैं EA1 से V5 के दरमियान जो कंपोनेंट है, दिस इज XS IA1 एंड देन दिस इज XS IA2 एंड दिस इज देन XS IA3 एंड लास्टली दिस इज योर XS into IA4. So this increases and thus the armature current is increasing, or it makes sense. See, so the armature current is increasing as the load is increasing. The important point to note here is that the power factor is also changing here. So अगर आप गौर करें, this theta is actually the angle between IA and V5. So can you see or can you actually realize कि आपके पास power factor पे क्या effect पड़ने जा रहा है? सो ये इसको देखने के लिए आप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि इनिशियली इट इज इन लीडिंग, ठीक है, करंट इज लीडिंग। अब क्या हो रहा है आपके पास, जैसे जैसे आप लोड को बढ़ा रहे हैं, दिस करंट इज इंक्रीजिंग, आई ए टू इज ग्रेटर देन आई ए वन। और जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज होता जा रहा है, अब आपके पास क्या हो रहा है, जो आपके पास आई ए है वो आहिस्ता आहिस्ता अलाइन होते जा रहे हैं V5 के साथ। सो एट वन पॉइंट फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ बात करूँ, आपके पास ये क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज नाउ अलाइंड विद IA3, सॉरी विद V5, ठीक है। बट इससे पहले अगर आप IA1 और IA2 में देखें तो हो क्या रहा है आपके पास, इनिशियली योर एंगल इज डिक्रीजिंग, ठीक है, और एक पॉइंट पे आप आके आप यूनिटी पावर फैक्टर के ऊपर आ गए। दिस इज योर केस ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर। किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज योर यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपके पास करंट इज इंक्रीजिंग, सो योर पावर फैक्टर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। बट जैसे ही आपके पास लैगिंग का केस बनता है, करंट को आप लोड को मजीद बढ़ाते हैं, तो ये आपके पास लैगिंग केस बनना शुरू हो जाता है। अब दोबारा आपके पास क्या होने जा रहा है, हैव अ लुक स्टूडेंट। अब दोबारा आपके पास दिस करंट हैज स्टार्टेड टू, sorry, this angle has started to increase. So again theta is now increasing. So as theta increases, cos of theta it decreases. So consequently your power factor decreases. So initially here in this region, अगर मैं इस रीजन के अंदर बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मेरे पास पावर फैक्टर was actually increasing. Why? Because the angle was decreasing and cos theta was increasing. ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा रीजन है स्टूडेंट, ये जो रीजन है हमारे पास, दिस इज योर लीडिंग रीजन, लीडिंग का केस था यहाँ पे। और ये जो दूसरा रीजन है हमारे पास, दिस इज एक्चुअली रेफरिंग टू लैगिंग, ठीक है, यहाँ पे लैग कर रहा था। सो नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। इसको मजीद देखने के लिए लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल। So now we are ready to solve this example. The data is provided to us. We have 208 volt, 45 kVA and 0.8 power factor leading. Delta connected 60 Hz synchronous machine. It has a synchronous reactance of 2.4 ohm, negligible armature resistance. इसका मतलब ये कि हम आर्मेचर रेजिस्टेंस के इफेक्ट को इग्नोर करने जा रहे हैं। फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस गिवन है हमें, कोल लॉसेस भी गिवन है, and initially the shaft is supplying a 15 horsepower load.
ठीक है, एंड द मोटर्स पावर फैक्टर इज 0.80 लीडिंग। तो ये डेटा हमें प्रोवाइडेड है। व्हाट वी हैव टू डू इन पार्ट ए, वी हैव टू फाइंड आउट द फेजर डायग्राम ऑफ दिस मोटर, और फेजर डायग्राम बनाने के लिए वी नीड टू नो द वैल्यूज ऑफ आई ए, आई एल एंड ई ए। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, so we know that the motor's output power is given to us 15 horsepower, or we know that 1 horsepower is equal to 746 watts. So you can convert 15 horsepower into watts or a kilowatt whatever, ठीक है। so इस रिलेशन को हमने यूज करके इसे कन्वर्ट कर लिए into kilowatts. So output power is now known to us, ठीक है। Okay. What about the power which is supplied to the machine, or the input power? Input power is actually the sum of all the powers. So output power plus all the losses. हमारे पास electrical losses यहाँ नहीं है क्योंकि armature resistance has been neglected or it's negligible. ठीक है? So the total sum of power, it comes out to be 13.69 kilowatt. Why do we need this power, input power? ये चीज आपको अभी clear हो जाएगी, because in order to find out the other parameters we need to actually know this input power. अच्छा जी, तो ये चीज अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि हमने इनपुट पावर क्यों कैलकुलेट की थी। वी हैड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई एल एज वेल। सो दिस इज द रिलेशनशिप गिवन फॉर आई एल। ठीक है, सो पावर इनपुट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 वी टी कॉस थीटा, यानी पावर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 वी इंटू आई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, so Vt is your terminal voltage, and since this is delta connected, so therefore it will be equal to 208 volts. इनफैक्ट हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लाइन क्वांटिटीज बात करें तो हमने अंडर रूट 3 यूज किया हुआ है, सो वी हैड टू यूज द लाइन क्वांटिटी व्हिच इज 208 volts here. So we know the value of input power, we know the value of Vt, and we know the value of theta. Theta is cos theta is 0.8 power factor. Sorry, 0.8. ठीक है, so if you plug in the values, you will then be able to find out the value of the current IL. So it comes out to be 47.5 amperes. ठीक है, बट रिमेंबर ये हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है। और अगर हम बात करते हैं आर्मेचर करंट की, तो आर्मेचर करंट विल बी एक्चुअली दिस आई एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। वाई? बिकॉज एक्चुअली दिस इज डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है, सो डेल्टा में जो आपके पास करंट के रिलेशनशिप होते हैं वो यही रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, so then this is your relationship, and you get your armature current. ठीक है, so armature current is equal to 27.4 angle 36.87। ये एंगल कहाँ से आया स्टूडेंट्स हमारे पास? दिस एंगल इज बिकॉज ऑफ दिस 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर। सिंस इट इज लीडिंग, therefore we have put in a plus here, we have not shown any minus here। अच्छा जी, अब अगर हम EA निकाल चुके हैं, IA निकाल चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? In order to find EA, we can simply apply the KVL. Remember, here we have a motor, और मोटर में क्या है? करंट फ्लो इज फ्रॉम टर्मिनल वोल्टेज VT फ्रॉम VT टुवर्ड्स EA। ठीक है, सो अगर इस रिलेशन को हम यूज करें, अगर पर फेज सर्किट को यूज करें, तो VT क्या हो जाएगा? V5 हो जाएगा, दिस इज EA। So this is the relationship. Now we have the value of V5, which is 208 volt. Why? Now this is 208 volt because we have delta connected। ठीक है, तो इस वजह से दोनों वोल्टेज सेम होते हैं। वी फेज वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज और लाइन वोल्टेज आपके पास सेम होते हैं। सो इट इज 208 वोल्ट्स, एंड द अदर पैरामीटर्स हैव ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड। ठीक है, ये हमारे पास पर फेज करंट था जो कि आर्मेचर करंट था। ठीक है, सो ये हमने यूज किया। रिमेंबर, यहाँ पे आपने ये वाला यूज नहीं करना, IL नहीं यूज करना, इनफैक्ट यू हैव टू यूज this IA। So once you plug in the values, you will then be able to find the value of EA as well। और EA ही हमें आइडेंटिफाई करना था। अब if we have the value of EA and we have the angle, then we can simply draw our phasor diagram। ठीक है, इसकी phasor diagram कैसे होने वाली है, जो हमने पीछे थ्योरी में भी देखी थी। ठीक है, so this is the case of leading, therefore करंट को हमने यहाँ दिखाया है, एंगल हमने मेंशन किया 36.87, and our delta is actually equal to दिस इज आवर डेल्टा, सो माइनस 12.4 वोल्ट्स। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ दिखा दी, और ये कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने यहाँ पे ड्रॉप भी दिखा दिया। सो यू सी दिस E इज एक्चुअली ग्रेटर देन V5 जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसी और ये हमने कैलकुलेट किया, यहाँ से हमें पता चला। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने अब यहाँ पे फेजर डायग्राम के अंदर भी ये इफेक्ट दिखा दिया है। सो आई होप ये आपको बहुत ही आसान लगा होगा, बिल्कुल सेम वही चीजें जो हमने पीछे थ्योरी के अंदर डिस्कस की थी। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट बी में हमसे कहा गया है कि नाउ द शाफ्ट लोड हैज बीन इंक्रीज टू
30 हॉर्स पावर, फ्रॉम 15 टू 30 हॉर्स पावर, यानी कि हमने लोड को इंक्रीज कर दिया। अब वी हैव टू स्केच द बिहेवियर ऑफ द फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे हमने पीछे थ्योरी में की थी, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। होगा क्या कि आपके पास एज द लोड इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर आपके पास जो ये का जो वेक्टर है दिस विल स्विंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, विद अ लार्जर लोड टॉर्क एंगल, ठीक है, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करें। सेम हमने वही बात की थी, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हाट इज आवर कंस्ट्रेंट, ये विल रिमेन कांस्टेंट, सो ये की वैल्यू चेंज नहीं होने जा रही। तो जब अब जो फेजर डायग्राम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बननी होगी, ठीक है। ये फेजर डायग्राम पहली वाली सेम वही है जो हम पीछे देख चुके हैं। सो फॉर आई ए वी हैव दिस 208 वोल्ट एंड 255 एंगल माइनस 12.4 वोल्ट। अब क्या होगा आपके पास, अब आपके पास चूंकि आपका लोड इंक्रीज हो गया है, सो देयरफॉर योर टॉर्क एंगल हैज इंक्रीज्ड। सो इफ इनिशियली इट वाज दिस, ठीक है, दिस वाज लेट्स से डेल्टा 1, ठीक है, नाउ इट हैज इंक्रीज्ड, नाउ इट हैज इंक्रीज, अब आप देख सकते हैं ये बढ़ चुका है। सो दिस इज नाउ योर डेल्टा 2। इस डेल्टा 2 की वैल्यू अभी यहाँ पे तो ऑल्दो आपको दिखाई हुई है, ठीक है, विच इज माइनस 23 वोल्ट, और आप देख सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। वी विल फाइंड इट आउट इन पार्ट सी, बट आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो अब आपके पास ये फेजर डायग्राम नजर आ गई है। सो आपने ये भी एक चीज रियलाइज की यहाँ पे कि आपके पास जो आर्मेचर करंट था इट वाज इनिशियली आई ए, now this current has actually increased from IA to IA dash. Okay students, before actually solving part C, may I ask you कि इस IA dash के ऊपर अब आपके पास क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? Will your power factor increase or it will decrease? So I hope ये चीज आपको थ्योरी में जो मैंने आपको बताई थी उससे आप रिलेट कर सकते हैं। Stop this video because in few seconds I am going to give you the answer. ओके, आई होप ये आप फिगर आउट कर चुके हैं। अब मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। अब हो क्या रहा है आपके पास, आप देखें जो आपके पास जो एंगल है फ्रॉम आई ए टू वी फाइव, दिस एंगल हैज नाउ डिक्रीज्ड। नाउ इफ द एंगल हैज डिक्रीज, द पावर फैक्टर विल एक्चुअली इम्प्रूव, ठीक है, क्योंकि कॉज ऑफ थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो रही है, एक्चुअली कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि थीटा कम हो रहा है तो कॉस थीटा आपके पास इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर योर पावर फैक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। लेट्स फाइंड दिस आउट न्यूमेरिकली इन पार्ट सी। अब यूं समझ लीजिए कि पार्ट सी में हमने पार्ट ए को दोबारा रिपीट करना है। अब हमारे पास 30 हॉर्स पावर है, ठीक है, आउटपुट पावर। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इनपुट पावर वी अगेन रिपीट द सेम प्रोसीजर, अदर लॉसेस रिमेन द सेम, एंड नाउ वी हैव आवर टोटल इनपुट पावर। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होने जा रहा है, अब इशू ये है कि अब हमें यहाँ पे पावर फैक्टर नहीं मालूम, हमें एंगल नहीं मालूम कि वो कौन सा एंगल है, क्योंकि पीछे तो हमें एंगल मालूम था, तो हमने कॉस थीटा वाला रिलेशनशिप यूज कर लिया था और पावर इनपुट के रिलेशन को यूज करके हमने बकिया पैरामीटर्स को निकाल लिया था। नाउ द पावर फैक्टर हैज चेंज्ड, सो कॉस थीटा हैज चेंज्ड, ठीक है। अब अगर आप फॉर इंस्टेंस 0.8 पावर फैक्टर यूज करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। द पावर फैक्टर हैज चेंज्ड एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि पावर फैक्टर कितना हुआ। So we are stuck here. What should we use? Then there is another equation which we can use जो हमने पीछे डिस्कस की हुई है। दिस इज अनदर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास तमाम पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। वी नो द पावर, वी हैव वी फाई विच इज 208, वी नो द वैल्यू ऑफ ई ए, ठीक है, क्योंकि व्हाई डू वी नो, हाउ डू वी नो द वैल्यू ऑफ ई ए, बिकॉज ई ए विल रिमेन कांस्टेंट और ई की वैल्यू हम पार्ट ए में आइडेंटिफाई कर चुके हैं। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। x of s is also given to me. The only thing which is left as unknown is this sign of delta. So then from this equation we can find out the value of delta. So if you plug in the values you will see that this comes out to be 23. So the load angle as you can see it is now 23 degree. ये चीज आपको डायरेक्टली पिछले फेजर डायग्राम में जो पार्ट बी में थी वो डायरेक्टली आपको दिखा दी थी। एक्चुअली जो इसकी कैलकुलेशन है वो यहाँ पे हमने की है पार्ट सी में। So I hope this is clear to you students. Let's move on to the next slide. So now we know that internal generated voltage is given by this 255 angle minus 23. I'm sorry, यहाँ पे एक correction है, please ये कर लीजिएगा, बुक में गलत हुआ है. This is not 355. This is actually 255 because the magnitude is not going to change. तो please ये correction कर लीजिएगा अपने पास. So this is 255 and the angle has only changed, ठीक है. So 23 degree आपके पास angle हो गया, it has increased. Okay, now how can we find out the value of IA? We know the value of V5.
ठीक है, जो टर्मिनल वोल्टेज है या पर फेज वोल्टेज है मेरे पास, आई नो द वैल्यू ऑफ ई ए, देन आई कैन सिंपली यूजिंग द the equivalent circuit, I can find out the value of IA. This is this relationship. And I have all the parameters to find out IA by just simply plugging in the values. I have my armature current. ठीक है, so armature current मेरे पास आ चुका है, which is now 41.2 angle 15 degree. You see the current has increased. Armature current has increased, as was our concept in theory as well. ठीक है, so now अगर मुझे लाइन करंट निकालना है तो लाइन करंट क्या होगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 बाय, बिकॉज दिस इज डेल्टा कनेक्टेड. ठीक है, सो अब हमने लाइन करंट भी निकाल लिया, इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट 3 आई ए, ये इसका मैग्नीट्यूड है. और अगर आप एंगल की बात करते हैं तो एंगल रिमेन्स द सेम. Lastly, the power factor is nothing but cos of theta. In cos of we have the value of theta. Theta is 15. ठीक है, ये जो IA में जो आपके पास एंगल मिलता है, this is actually your theta. ठीक है, because this is the angle between IA and V phi. So you see the power factor has actually increased. So initially it was 0.8, now it is actually 0.966. तो आप देख सकते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता आप यूनिटी पावर फैक्टर की तरफ आ रहे हैं, जैसे जैसे आप लोड को इंक्रीज कर रहे हैं. अगर आपने लोड को मजीद इंक्रीज किया तो क्या होने जा रहा है, आपके पास जो आपका आई ए का जो वेक्टर है वो एक्चुअली अब यूनिटी पावर फैक्टर पे चला जाएगा, और मजीद इंक्रीज करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, इनटू लैगिंग. ठीक है, सो ये एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है जो हमने थ्योरी में किया है. सो आई होप इस न्यूमेरिकल के बाद आपको वो थ्योरी और न्यूमेरिकल से काफी अब आसान हो गया होगा. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. इंशाल्लाह आई सी यू इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर.